Bismillahirrahmanirrahim. Respected students, today we are going to learn our next subtopic from page number 85 and 86. First, I would like to introduce my board summary. This board summary shows class 8th subject general English, and you know our topic is Achilles and subtopic is page number 85. Page number 85 is last para and 86 very initial lines of this para, and dated today you know is 19th of July 2020. So yesterday I wrongly said that today is 17th, but yesterday was 18th of July, for which I am very sorry. So here it is page 85. Now we go to start it. Slowly, this para is very, I cannot say that is tough, but I need your full attention about this para. Although this story is rather than which we have read two stories, it is something different story, and its words are very difficult. So here we goes. This is first slowly and the tortoises unpacked their heads and legs from the gleaming shells. You know that these tortoises have been polished. These tortoises have been reflected light, very clean. So gleaming means reflecting light, very clean, polished, and we can say also this gleaming means that what can I say, this is lustrous. जो ये इनका खोल था, इनका जो शेल था, उस पर पॉलिश लगाई गई थी, वो चमक रहे थे। तो इन्होंने तो आहिस्ता आहिस्ता जो ये कछुए थे, उन्होंने अपना सिर और टांगों को अपने जो वो चमकीली उनका जो कवर, जो चमकीला कवर था, जो वो खोल था, से बाहर निकाला। And set off down the road without enthusiasm. Here it is enthusiasm. तो जो ये
उनका जोश था वो तो सेट ऑफ डाउन द रोड। जो ये सेट ऑफ डाउन द सड़क की तरफ, जो वो धूल भरी सड़क थी उसकी तरफ जैसे वो बिगिन ए जर्नी सेट ऑफ, तो वो चलने लगे डाउन द रोड उस सड़क की तरफ विदाउट एनी एंथुसियाज्म। उनमें किसी के पास वो ऐसा जोश नहीं था। जैसे सेट ऑफ बिगिन, सेट ऑफ मीन्स बिगिन ए जर्नी डाउन रोड सड़क की तरफ। तो मैं यहाँ पर एक सेंटेंस आपको बताऊँ। दे सेट ऑफ, दे सेट ऑफ, they set off together in the small car. So means begin a journey. I watched them fascinated. I watched them fascinated. मैं मशहूर होकर उन्हें देख रहा था। Extremely, I was extremely interested to watch them, how they are walking, how they are walking, how they are lustrous. They have been polished. So this is all this. I was watched and I was extremely interested. I was fascinated. I watched them fascinated. The one that particularly took my fancy was small, with shell the size of a teacup. उन कछुओं में से एक कछुआ जिसने एक खास शक्ल रूप से मेरा ध्यान अपनी तरफ खींचा। हालांकि वो कछुआ उतना बड़ा नहीं था, एक चाय के कप के मानंद या एक चाय के कप के छोटे खोल वाला कछुआ था। Fascinated, the one that particularly took my fancy was small, with a shell the size of a teacup. एक चाय के प्याले के मानंद एक कछुआ था। उसकी तरफ मेरा पूरा ध्यान गया, उसकी तरफ मैं देखकर मशहूर रह गया। उसका जो शक्ल था, उसका जो रूप था, उसको देखकर मैं तो काफ़ी हैरानी में पड़ गया। माई, यहाँ लिखा है एक जगह माई फैंसी, यहाँ माई फैंसी। Here I would like to show it. This, sorry, this my fancy. My fancy, क्या to be one's liking, यानी जो ये कछुआ था ये मेरी पसंद का कछुआ था, तो इसको मैं काफ़ी पसंद करता था। To interest someone, I was very interested in that tortoise. So this is the correct meaning of my fancy. बच्चों, आप तो जानते हैं कि हम ये जो फैंसी वर्ड है, फैंसी कभी हम कोई ईद या कोई पार्टी का मौका होता है, तो कोई फंक्शन होती है स्कूल में, तो हम अपने
लिए एक फैंसी ड्रेस पहनकर आते हैं. That is fancy dress is we can say clothing that you wear for a party, for a school function. तो उसको हम कहते हैं फैंसी ड्रेस. फैंसी ड्रेस ये जो होता है, ये इसमें लाइकिंग होती है, इसमें इंटरेस्ट होता है बच्चे का, तो इसको कहते हैं हम फैंसी. यहाँ पर लिखा है माई फैंसी, यानी जो कप का साइज, जो चाय के प्याली के साइज के बराबर एक कछुआ होता है जिस पर पॉलिश लगी होती है, जो लस्ट्रस होता है, which was very polished, which was very gleaming. So this tortoise, I like it. I was its liking. So this is the best meaning of this fancy. Dear students, आप जान गए कि फैंसी और माई फैंसी में क्या फ़र्क है. I watched them, fascinated. The one that particularly took my fancy was Sumal with a shell the size of a teacup. जो इसका शल था, जो इसका खोल था, जिसमें ये कछुआ होता है, वो काफ़ी सख्त होता है उसका, तो उस कप के बराबर था, इसीलिए उसको मैं पसंद करता था. It seemed sprightlier. It seemed sprightlier than the others. यानी ये जो कछुआ था वो क्या था, वो तो बिल्कुल जिंदा था. ये दूसरों कछुओं से ज्यादा जिंदा दिल जाहिर हो रहा था. स्प्राइटलायर यानी जिसको हम कहते हैं जिंदा दिल या लाइवली, फुल ऑफ एनर्जी. इसमें एनर्जी थी, फुल ऑफ एनर्जी. ये उन बूढ़ों की तरफ नहीं था जो बूढ़े कछुए थे, लेकिन ये तो एक छोटा सा कछुआ था. तो इसको मैं देखकर, इसका जो फैंसी साइज था, तो इसको देखकर मैं काफ़ी हैरान हो गया, मैं मासूर हो गया. मेरा दिल उसने ले लिया, मेरा दिल मोह गया उसको देखकर. इट्स आइज वायर ब्राइट, उसकी आंखें चमक रही थी. एंड इट्स वॉक वॉज अलर्ट. इट्स और इसकी चाल वॉक इसकी चाल जो थी वो फुर्तीली थी उसकी चाल. आई सैट, मैं नीचे बैठ गया. लुकिंग एट इट फॉर ए लॉन्ग टाइम, और इसकी तरफ काफ़ी वक्त तक देखता रहा. इसकी तरफ काफ़ी वक्त तक देखता रहा. I convinced myself that the family would greet its arrival at the villa with enthusiasm. मैंने अपने आप को कन्विंस किया, परस्यूड किया, मायल किया. Convince means if you are convinced that something is true, you feel sure that it is true. इसको convince कहते हैं, इसको pursued कहते हैं. मैंने अपने दिल को मायल किया. क्यों मायल किया? कि मैं बहुत देर तक हालांकि उसकी तरफ देखता रहा. मैंने खुद को ये भरोसा दिलाया, मैंने खुद को ये अपने दिल को मायल कर दिया
कि उसके कुंबे वाले, कुंबे के लोग जो उसके फैमिली थे, घर के लोग थे, घर में उसके आने का पुरजोश तरीके से इस्तकबाल करेंगे। Here you see, I convinced myself, मैंने अपने दिल को भरोसा दिलाया, that the family would, जो मेरे घर के अफराद खाना है, greet its arrival, इसका पुरजोश उसके घर तक पहुंचने का, at the villa, जो इसका घर था, with enthusiasm, काफ़ी जोश के साथ, enthusiasm। अब यहाँ पर देखें इस सेंटेंस को, तो कन्विंस आपने देखा, कन्विंस मैंने आपको समझाया कि क्या हो गया, परस्यूड हो गया, इफ़ यू आर कन्विंस्ड दैट समथिंग इज ट्रू। इसको माई सेल्फ दैट द फैमिली वुड ग्रीट, इसका इस्तकबाल करेंगे पुरजोश, इट्स अराइवल, उसके मेरे घर के पहुंचने पर, एट द वीला विच विथ एंथुजियाज्म। यहाँ एक वर्ड है, इसको कहते हैं हम वीला। ये वीला है क्या? वीला क्या हो गया? वीला मीन्स a large and luxurious country house in its own ground. First, I would like to say, जो अमीर लोग गाँव में होते हैं, मैं वीला का मानी बता रहा हूँ कि वीला क्या हो गया। आमतौर पर गाँव में कोई ऐसी तरक्की नहीं होती है कि जिससे गाँव के सभी लोग खुशहाल होते हैं, लेकिन एक ऐसा आदमी या गाँव के ऐसे 1, 2 या 3 आदमी हो सकते हैं जो अमीर होते हैं, जिनके पास दौलत होती है, उनका एक वीला होता है, उनके पास ज़मीन जायदाद पैसा सब कुछ होता है, और रहने के लिए उनके पास एक घर होता है, उसको हम कहते हैं वीला। बच्चों यथ कशिर पट अस वनान छ देबा खान। यह गो देबा खान, युस काफी बोड़ मकान छ आसा, अत मस वारिया कमरा आसा, अत छ आसा पनुन जमीन एमिस, यह छ आसा, नत छ अत हेका असित फार्म ते अत सत। यह गो वीला। वीला मीन्स ए लार्ज एंड लक्शरियस। लक्शरियस क्या गो? ऐश अशरत वाली जगह, जहां पर सब कुछ बहम होता है, गर्मी का या सर्दियों में गर्मी का इंतज़ाम होता है, गर्मियों में सर्दी का इंतज़ाम होता है, खाने पीने का, बेडरूम, लॉबी, इसमें सब कुछ होता है। इसको हम उसको हम कहते हैं देबा खान। यम सात हसा मीनिस देबा खानस पे यह वात, बह हसा कर मैन गरिक हसा कर अमिस पुरजोश इस्तकबाल, ग्रीट। यहाँ मैं ग्रीट का भी क्या बताऊं। एक तो हो गया ग्रीटिंग्स। ग्रीटिंग्स हम कहते हैं अरबिक में अस्सलाम अलैकुम। दिस इज अ फ्रेज, अस्सलाम अलैकुम। दिस इज अ फ्रेज that is so closely associated with our culture that it has become famous all over the world. Assalamu alaikum. The phrase Assalamu alaikum is actually Arabic word for peace be on you.
तो इसको हम कहते हैं ग्रीटिंग, ग्रीटिंग्स, अस्सलाम वालेकुम, ग्रीट, इस्तकबाल करेंगे, यहां पर लिखा है ग्रीट। सो द फैक्ट दैट आई हैड नो मनी, मी, I had no money on me did not worry me. दर हकीकत, द फैक्ट, असल हकीकत हसा यह कि ये ई म्योन गर, बस कर अमिस तत इस्तकबाल, अत इस्तकबाल सत हसा कर बह अम सज दिल बहलई। आई दिस क्या पढ़ा मैं, द फैक्ट दैट आई हैड नो मनी, हालांकि हकीकत हसा यह कि मैं सो चंदस मज कहान पोस, ऑन मी डिड नॉट वरी मी, मैं इससे परेशान नहीं हुआ कि मेरे पास इस वक्त, हालांकि ये डिमांड कर रहा था पैसों से, जो वो नॉडिंग कर रहा था, जो वो इशारा कर रहा था पैसों के लिए, तो इसके पास इसके जेब में तो पैसे नहीं थे। आई वुड सिंपली टेल द मैन to call at the villa for payments, मैं इसको अपने घर पर बुला लूं, अपने बंगले पर। इसको हम बहुत सारे ऐसे होते हैं जहाँ, एक तो हो गया जिसमें हम रहते हैं, एक तो हो गया हाउस, दूसरा हो गया वीला, दूसरा हो गया बंगलो, दूसरा हो गया हट, दूसरा हो गया इग्लू, इग्लू। सो दिस हियर he want to pay a visit to my villa. I would simply tell the man no call at the villa for payment. I never occurred to me, मुझे ये बात मुझे कभी महसूस नहीं हुई, ये बात मुझे कभी महसूस नहीं। यहाँ एंथुजियाज़म का मैं तो मैंने इसका ये प्रोनाउंसिएशन बताया, enthusiasm, this is means intense, this means eager, जिसमें जोश हो, जिसमें जज्बा हो, enthusiasm। यहाँ मैं ये भूल गया इसका माने बताना। So it never occurred to me, मुझे ये बात मुझे कभी महसूस नहीं हुई, ये बात मुझे, that he might not trust me, कि हो सकता है कि वो मुझ पर ट्रस्ट न करे, यकीन न करे, कि अगर मैं उससे बताऊं कि आप मेरे घर पर आए, मेरे देबा खान पर आए, तो ये शायद सोचेंगे कि क्या पता वहाँ मैं जाऊँ, दूर होगा, फिर क्या पता ये देंगे वहाँ पर पैसे, या हालांकि इस बात की मुझे कोई परवाह नहीं थी कि वो ये मेरी बात पर भरोसा करेंगे या न करेंगे। सो दिस इज़, I might not trust me, the fact that I was English was sufficient. The fact was, हकीकत ये है, हकीकत ये थी, the fact was, कि मैं एक इंग्लिश अंग्रेज हूँ। The fact was, the fact that I was English, I was English was sufficient, ये मेरे लिए काफ़ी था, ये सनद मेरे लिए काफ़ी था कि मैं एक अंग्रेज़ हूँ, बस छुस अख अंग्रेज़, हसा छ अस पेठ भरोसा कर। Then for the islanders had a love,
and respect for the Englishman. Islanders means a native or inhabitant of an island. इसको हम कहते हैं islanders. यहाँ ISLAND, S को हम साइलेंट रखेंगे. Islanders, S को साइलेंट. Islanders. तो being an islander, he will trust me, he will come to my villa. Islanders. पहले हम बताऊं कि इसका ये आइलैंड क्या हो गया. आइलैंडर मैंने बता दिया. नाउ island means a piece of land surrounded by the water. Yath öndin ab as mazbag as khosh. This is called island. Islanders means the native of these, the inhabitant of these islands. Yem baskin ch maskan chas. Taman ch iswana islanders. ये कहता है इंग्लिश. अच्छा, फॉर द आइलैंडर्स, जो आइलैंडर जो जजीरे के लोग रहने वाले होते हैं, हैड ए लव, इनको प्यार होता है, एंड रेस्पेक्ट, इज्जत होती है, फॉर द इंग्लिशमैन, अंग्रेजों के लिए. तो इसको हम ये और वीला का मैंने ये बताया. वीला का मैं बताऊं कि इसको ये जो टाउन, बेसिकली वीला इज ए स्पेनिश वर्ड, वीला. तो वीला को हम टाउन, स्मॉल टाउन भी कहते हैं. वीला को हम विलेज भी कहते हैं. विलेज पहले मैंने बताया कि विलेज में ही कुछ ऐसे 2-3 आदमी होते हैं जिनके पास, जो खुशहाल होते हैं, प्रॉस्पर होते हैं, उनके पास पैसा होता है, दौलत होती है. तो ये जो इसको, तो इनके पास एक वीला होता है. देबा खान चौमनिश आसा, मेरे हिसाब से ये जो विलेज, ये इसी वीला से निकला है. VILLAGE, वीला, विलेज. So, dear students, here I would like to close this chapter here, but to make more interested, I would like to say 2 questions. These questions are, 2 सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर आप इसको लिखें भी तो कल हम फिर आप मुझे व्हाट्सएप पर भेज देंगे कि इसका करेक्ट आंसर क्या है. इंग्लिश के ही हैं. द ओनली वर्ड दैट इज, पहला क्वेश्चन, द ओनली वर्ड, which word in the dictionary is spelled wrong, incorrectly? Sorry, which word in the dictionary is spelled incorrectly? Number 1 question. Number 2, 15 letters word दो लिखे. 15 letters word. तो इस टॉपिक को या इस आज के इस लेसन को इंटरेस्टेड बनाने के लिए, दिलचस्प बनाने के लिए मैं आपसे ये 2 सवाल चाहता हूँ कि विच वर्ड इन द डिक्शनरी इज स्पेल्ड इनकरेक्टली, और दूसरा क्वेश्चन है कि 15 लेटर्स वर्ड सिर्फ 2 चाहिए, 2. तो उम्मीद है कि आप इसको व्हाट्सएप पर भेज देंगे. हमारा जो ई-लर्निंग ग्रुप है वहाँ इस पर आप इस पर जवाब देंगे
तो मैं यहाँ पर ही आपसे इजाज़त चाहता हूँ कि आज का क्लास हम यहाँ पर ही ख़त्म कर देंगे। ये लगभग ये क्लास मुझे दिखा रहा है 30 minutes and 15 seconds. So here I would like to leave this class. Thank you.